Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is Journey of Filmmaking. The story of filmmaking perhaps started with shadow plays and shadow puppets, which have entertained people for thousands of years. Read about how motion pictures came into being and various stages of its development. बच्चों ये कहा जाता है कि फिल्म मेकिंग के पीछे की कहानी ऐसे मानी जाती है कि पहले ये स्टार्ट हुई थी शेडो प्लेस से या फिर शेडो पपेट से, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो लोग थे वो खुद एनैक्ट करने लगे और फिर वो मोशन पिक्चर्स में कन्वर्ट हो गई। In 1895, two French brothers, Auguste and Louis Lumiere, developed the cinematograph, which could record and also project moving images on a screen. Finally, on 28 December 1895, in the basement of the Grand Cafe in Paris, the Lumiere brothers began using their cinematography projector to give regular film shows to paying audience. बच्चों ये कहा जाता है कि इसकी शुरुआत जो थी वो टू फ्रेंच ब्रदर्स के थ्रू हुई थी। कब? 1895 में, ठीक है। अब इन्होंने एक प्रोजेक्टर बनाया और उसमें मूविंग इमेजेस जो थी उनको दिखाया, कहाँ पे? स्क्रीन पे, ठीक है। फाइनली 28 दिसंबर 1895 को एक कैफ़े में जो कि पेरिस में था, वहाँ पे दोनों ब्रदर्स ने अपने सिनेमेटोग्राफी प्रोजेक्टर को स्टार्ट किया और बाकी ऑडियंस को भी उन्होंने ये चीज़ें दिखाई। The first films were recording of mundane activities, men playing cards, a joke played on a gardener, a train entering a station, but the whole of pairs flocked to these shows. By 1896, the films were screened in London and soon became a sensation all over the world, including in India, the home of the world's largest film industry. George Méliès, a French professional conjurer, was the first person to use films to tell a story. ठीक है, फर्स्ट फिल्म जो थी वो क्या हुई थी? रिकॉर्ड हुई थी कहाँ पे? मुंडेन एक्टिविटीज़ में, ठीक है। और इसमें आपके मेंस जो थे वो दिखाए गए थे कार्ड्स प्ले करते हुए और वो जोक्स कर रहे थे गार्डनर के ऊपर, ठीक है। और इसमें एक ट्रेन जो है वो एंटर होती है स्टेशन पे, ठीक है। तो ये कहानी जो थी वो उसी के आसपास घूम रही थी और ये जो मूवी थी, ये जो स्क्रीन कैरेक्टर्स थे वो काफ़ी फेमस भी हुए थे वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी। अ सीन फ्रॉम अ फिल्म बाय मेलीस। Cinema became a popular medium in the 20th century. The first short films in India were directed by Hiralal Sen around 1901, soon under Jamshedji Farm-Madan. At least 10 films were annually produced and distributed in India. In 1913, Dada Shah Phalke produced Raja Harishchandra, India's first full-length motion picture. Around the same time, Broadway actor and filmmaker Cecil B. DeMille and Oscar F.L. moved to Los Angeles in California, then known as Hollywoodland, in search of a location for the shooting of a film. ठीक है, इसके बाद जो सीन्स थे वो लिए गए थे मूवी से बाय मिलीस, ठीक है। सिनेमा जो था वो पॉपुलर बना था 20th सेंचुरी के मिडल में। फर्स्ट जो शॉर्ट फिल्म थी इंडिया की वो डायरेक्ट की गई थी हीरालाल सेन के द्वारा। कब? 1901 में, ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे जो दादा साहब फाल्के थे उन्होंने राजा हरीशचंद्र नाम की पहली मूवी बनाई थी इंडिया की, फुल लेंथ मूवी ये मानी जाती है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो फिल्म मेकर्स थे वो काफ़ी फेमस हुए, मतलब काफ़ी उन्होंने मूवीज़ बनाई और ऐसे कहा जाता है कि कैलिफोर्निया में हॉलीवुड लैंड की स्थापना की गई थी। अ सीन फ्रॉम राजा हरीशचंद्र। बाय 1930, D.W. Griffith, an American director, was making a new kind of film. Instead of the usual 10-minute film, he began to produce dramatic masterpieces, some of which lasted more than 3 hours. In 1926, the Vitaphone system was invented, which enabled filmmakers to record sound. With further development, dialogues, music and sound effects could be recorded separately and mixed to create a final soundtrack. The talkies were born. ठीक है, इसके बाद कुछ सीन्स लिए गए राजा हरीशचंद्र से, ठीक है। 1930 में डब्ल्यू ग्रिफिथ जो थे एक अमेरिकन डायरेक्टर थे, ठीक है। वो एक फिल्म बना रहे थे और उन्होंने राजा हरीशचंद्र जब देखी थी तो उन्होंने इससे इंस्पायर होकर खुद भी एक जो फिल्म थी वो डायरेक्ट की थी, ठीक है। उन्होंने एक ड्रामेटिक मास्टरपीस बनाया जो कि
3 आवर्स की एक लॉन्ग मूवी मानी जाती है। और 1926 में जब वीटाफोन का आविष्कार हुआ था, वीटाफोन सिस्टम का, तो इससे फिल्म मेकर्स को ईजी हो गया था साउंड को रिकॉर्ड करना। इस तरह से फिर वो साउंड ट्रैक को क्रिएट करते थे और फिर उसे फिल्म के साथ मूवीज़ के जो एक्शन सीन्स होते थे उनके साथ उन्हें मैच करते थे। A grand set in one of Griffith's film. Soon, directors all over the world began to explore film as a medium of art. In 1932, the Technicolor process was introduced, which used a special camera to record colored images. One of the first films to use Technicolor was Walt Disney's Three Little Pigs, which was a great hit. अब इसके बाद क्या हुआ बच्चों, जो डायरेक्टर्स थे ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक्सप्लोर करने लगे फिल्म मीडियम को, ठीक है। और उसके बाद टेक्निकलर प्रोसेस को भी यूज़ किया गया, ठीक है। मतलब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके बाद जितने भी स्पेशल कैमरास थे वो आपकी कलर्ड इमेजेस को रिकॉर्ड करते थे। और इसमें जो पहली टेक्निकलर मूवी थी वो मानी जाती है कि वो थी थ्री लिटिल पिग्स की, जो कि डायरेक्ट की गई थी वॉल्ट डिज्नी के द्वारा। सोहराब मोदी मेड इंडियाज़ फर्स्ट entirely technicolor film झांसी की रानी 1953. By the 1950s, cinema had a new competitor, television. Filmmakers fought back with a range of technicolor innovations, including 3D films. In 1952, a process called Cinerama was used, which used not just one but 3 films projectors and a huge screen to give a bigger all-round experience. The film series Star Wars by George Lucas brought about a revolution in special effects using the latest in computer technology. ठीक है, इसके बाद सोहराब मोदी ने इंडिया की पहली टेक्निकलर फिल्म बनाई, ठीक है। टेक्निकलर जो थी इसमें आपके मल्टी कलर्स को शामिल किया गया था। पहले मूवीज जो थी वो ब्लैक एंड वाइट में बनती थी, फिर उसके बाद कलर्ड में बनी थी। तो पहली टेक्निकलर मूवी थी झांसी की रानी, जो कि बनी थी 1953 में, ठीक है। फिर उसके बाद फिल्म मेकर्स जो थे वो फाउट बैक करने लगे, मतलब एक के बाद एक सारे डायरेक्टर्स जो थे, फिल्म मेकर्स जो थे वो अपनी अपनी मूवीज़ बनाने लगे इन टेक्निकल इनोवेशंस को क्या करके, यूज़ करके, ठीक है। और इसी में 3D फिल्म्स को भी इंक्लूड किया जाता था। 1952 में एक प्रोसेस था जिसका नाम था चिनेरामा, वो यूज़ किया गया एक बार में नहीं बल्कि काफ़ी, मतलब 3 फिल्म्स में उन्हें इंक्लूड किया गया। और वो एक प्रोजेक्टर के थ्रू अपनी मूवीज़ को स्क्रीन पे दिखाते थे। बिग स्क्रीन जो होती थी, जो आजकल किस में कन्वर्ट हो गई है, सिनेमा हॉल में कन्वर्ट हो गई, तो पहले ये स्क्रीन हुआ करती थी, एक पर्दा हुआ करता था जिसमें मूवीज़ को दर्शाया जाता था, ठीक है। फिल्म सीरीज़ जो थी स्टार वॉर वो बनाई गई थी किसके द्वारा, जॉर्ज लूकस के द्वारा। तो वो एक रेवोल्यूशन माना जाता है इन स्पेशल इफेक्ट, क्योंकि उसके बाद काफ़ी इक्विपमेंट आने लगे, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो गई थी। तो इसके बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता था फिल्म बनाने के लिए। Do you know in the early talkies, sound engineers used the sound of a coffee grinder to create sound effects of carriage wheels rattling over a road, and shook a pair of leather gloves to sound like a flock of pigeons. बच्चों क्या आपको पता है कि अर्ली टॉकीज़ में कॉफ़ी ग्राइंडर का यूज़ किया जाता था ताकि ऐसा दिखाया जा सके कि कार जो है वो रोड पे चल रही है, मतलब उसका साउंड निकाला जाता था जो उसके साथ मैच किया जाता था, ठीक है। कुछ शुक ऑफ पेयर लिए जाते थे लेदर ग्लोव्स के, जो कि यूज़ किए जाते थे फ्लॉक ऑफ पिजन्स का साउंड निकालने के लिए। तो बच्चों आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।